हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 2 का जो फाइनेंशियल अकाउंट है उसमें चैप्टर नंबर 2 जो है अकाउंट्स ऑफ बिजनेस परचेस एटले के धंधानी खरीदी अंगेना हिसाबो, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 4 कराने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इस सम में ऐसा बोला गया है कि Selja Limited was incorporated on 1st April 2024 to purchase the business of Messrs. Vardhman and Vatsal with an authorized capital of of 25,000 equity shares and rupees 10 each. The balance sheet of the old firm on 31st March 2024 was as under. ठीक है, એટલે કંઈ તેનું ગુજરાતી આપેલું છે કે મેસર્સ વર્ધમાન અને વત્સલનો ધંધો ખરીદવા માટે તારીખ 1/4/2024ના રોજ સેલ્જા કંપની લિમિટેડ સ્થાપના કરવામાં આવી છે। તેની સત્તાવાર થાપણ 25,000 ઇક્વિટી શેર્સ દરેક ₹10ના એક એવા વહેંચવામાં આવેલા છે અને મેસર્સ વર્ધમાન અને વત્સલની પેઢીનું 31/3/2024ના રોજનું પાકું સર્વે नीचे मुजब आपेलू है। यहाँ पे आप लोगों को बैलेंस शीट दी गई है। उसके बाद आगे ऐसा बोला गया है कि द टर्म्स ऑफ परचेस ऑफ बिजनेस वेर एज अंडर, एटले कि अहीं धंधो खरीदवा माटे नीचेनी शरतो छे। उसमें फर्स्ट यहाँ पे गुडविल ऑफ द कंपनी वॉज टू बी कैलकुलेटेड एट ट्वीज। यहाँ पे है द एवरेज प्रॉफिट of the last 3 years and average profit of the last 3 years आप लोगों को दिया है 7,500। એટલે કે અહીં તેનું ગુજરાતી થશે કે પેઢીની પાઘડી છેલ્લા 3 વર્ષના સરેરાશ નફાની 2 ગણી છે। ठीक है, અને છેલ્લા અહીંયા 3 વર્ષનો સરેરાશ નફો આપેલો છે 7,500। तो यहाँ पे इंटू हम लोग 2 करेंगे तो हम लोग को गुडविल मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड यहाँ पे आप लोग को दिया है बुक वैल्यू ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग इज 25% लेस देन द मार्केट वैल्यू एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द investment and stock were rupees 18,000 and 30,000 respectively. Land and building invested and stock were to be calculated were be taken up at the market value। और उसके बाद है debtors required to प्रोवाइड, यहाँ पे प्रोविजन है ऑफ 10% एज बेड डेप्स रिजर्व। और यहाँ पे दिया है अदर असेट्स एंड लायबिलिटीज वेर टेकन एट बुक वेल्यू। એટલે કે અહીં તેનું ગુજરાતી આપેલું છે કે જમીન મકાનની ચોપડે દર્શાવેલ કિંમત બજાર કિંમત કરતાં 25% ઓછી છે અને રોકાણો અને સ્ટોકની બજાર કિંમત અનુક્રમે 18,000 અને 30,000 છે। અને અહીં આગળ આપેલું છે કે જમીન મકાન રોકાણ અને સ્ટોક બજાર કિંમતે લેવાના છે અને દેવાદારો પર 10% ગાલખાદ અનામત રાખવી जरूरी है અને બાકીની જે મિલકતોને દેવા છે તે ચોપડે દર્શાવેલ કિંમતે લેવાના છે। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे थर्ड नंबर का आप लोगों को दिया है अ क्लेम ऑफ ₹500 इज एक्सेप्टेड बाय द फर्म अगेंस्ट वर्कर्स कम्पेन्सेशन फंड विच विल बी पेड अप कंपनी इन फ्यूचर। એટલે કે અહીં કામદાર અકસ્માત વળતરના ભંડોળ સામે ₹500ની પેઢીએ સ્વીકારનો दावो कंपनी भविष्य में चुकावશે। उसके बाद फोर्थ नंबर का यहाँ पे परचेस कंसिडरेशंस विल बी डिस्चार्ज एज फॉलोज, એટલે કે ધંધાની ખરીદ કિંમત नी चुकवणी नीचे मुजब थશે। उसमें फर्स्ट ए दिया है आप लोगों को सेल्जना कंपनीज 15% डिबेंचर टू बी इश्यूड टू द पब्लिक डिपॉजिट होल्डर्स of the firms in such manner that public deposit holder of the firm do not sustain any interest loss in future। એટલે કે અહીં આપેલું છે કે સેલ્જા જે કંપનીના 15%ના એલટી કંપનીના ડિબેન્ચરો જેથી કંપની પબ્લિક ડિપોઝિટ હોલ્ડરનું વ્યાજનું નુકસાન ન થાય તેવી રીતે આપે છે। उसके बाद बी यहाँ पे है सेल्जा कंपनीज 13,500 equity shares each of ₹10 at the price of ₹16 per share। એટલે કે અહીં આપેલું છે કે સેલ્જા કંપનીના ₹10ના એક એવા 13,500 ઇક્વિટી શેર્સ ₹16ના ભાવે। અને और आगे यहाँ पे आप लोग को दिया बैलेंस अमाउंट इन कैश, એટલે કે જે બાકીની રકમ જે છે તે રોકડ સ્વરૂપમાં ચૂકવશે। और डी यहाँ पे आप लोग को दिया है फर्म्स डिसोल्यूशन एक्सपेंसिस ₹1200 वॉज बोर्न बाय द कंपनी, એટલે કે અહીં પેઢીનો વિસર્જન ખર્ચ 1200 કંપની ચૂકવવાનો છે। उसके बाद यहाँ पे द कंपनी इश्यूड 7,500 इक्विटी शेयर्स ईच ऑफ ₹10 पब्लिक एट 20% प्रीमियम फॉर which full amount was received। preliminary expenses of the company amount of ₹1,800। એટલે કે અહીં આપેલું છે કે કંપનીએ 7,500 ઇક્વિટી શેર્સ દરેક 10ના જાહેર જનતા માટે 20%ના પ્રીમિયમે બહાર પાડ્યા અને જેથી અહીં આગળ જેની પૂરેપૂરી રકમ મળી ગઈ છે અને કંપનીનો પ્રાથમિક ખર્ચ 1800 થયો છે। ठीक है, अभी यहाँ पे आप लोगों को ये सब में एक मिस्टेक दी गई है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पे 8 की जगह पे 2 आएगा। ठीक है, तो 1200 आप लोग को लिखना होगा। उसके बाद आगे यहाँ पे ड्राफ्ट जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सेल्जा लिमिटेड एंड द प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट
ઓફ ધ ન્યૂ કંપની, એટલે કે અહીં ઉપરના વ્યવહારોથી સેલ્જા કંપનીના ચોપડે જરૂરી આમ નોંધ લખવાની છે અને તે પછીનું પાકું સરવૈયું તૈયાર કરવાનું છે. ઠીક है, तो फर्स्ट आप लोगों को परचेस कंसिडरेशंस निकालना होगा, એટલે કે खरीद कीमत निकालनी રહેશે. ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे हम लोग गुडविल लेंगे. तो गुडविल में आप लोग को ऐसा दिया गया कि 7500 3 ईयर की एवरेज है और यहाँ पे ट्वाइस है, એટલે કે यानी कि यहाँ पे એટલે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે 2 ગણી કરવી. ठीक है, तो यहाँ पे इंटू 2 हम लोग करेंगे, यानी कि यहाँ पे आप लोग को 15,000 अमाउंट मिलेगी गुडविल की. ठीक है, उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग की आप लोगों को यहाँ पे कितनी दी गई है, तो वो ऐसा बोला गया है कि 25% कम है यहाँ पे. ठीक है, आप लोगों को डायरेक्टली ऐसा दिया गया है कि 25% बुक वैल्यू ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग 25% लेस देन द मार्केट वैल्यू. ठीक है, એટલે કે અહીં જમીન મકાન ચોપડે दर्शाल कीमत बाजार कीमत करता 25% ओछी है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसकी यहाँ पे बुक वैल्यू कितनी है लैंड एंड बिल्डिंग की 1,50,000 है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसमें से फर्स्ट यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन फंड दिया है लाइबिलिटी साइड आप लोगों को जो भी डेप्रिसिएशन फंड दिया है वो भी आप लोगों को नज़र में लेना है. तो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग में 1,50,000 है, तो इसमें से फर्स्ट हम लोग 30,000 माइनस कर देंगे. ठीक है, यानी कि 1,20,000 अमाउंट मिलेगी. तो इसकी कैलकुलेशन हम लोग किस तरह से करेंगे, तो 1,20,000 इंटू हम लोग 100 करेंगे और डिवाइड किससे करेंगे, तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि 25% लेस है मार्केट वैल्यू से. ठीक है, यानी कि 100 में से हम लोग 25 लेस करें तो 75 हम लोगों को मिल जाएगा. ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को कैलकुलेशन करनी है, यानी कि जब भी डेप्रिसिएशन फंड आप लोगों को दिया है तो वो अमाउंट यहाँ पे जो भी बुक वैल्यू है उसमें से माइनस करने के बाद ही आप लोगों को लेना है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो 1,20,000 इंटू 100 बाय 75, तो यहाँ पे आप लोगों को 1,60,000 अमाउंट मिलेगी किसकी, तो लैंड एंड बिल्डिंग की. ठीक है, तो 1,60,000 इस तरह से आप लोगों को लिखना है. देन उसके बाद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की अगर हम लोग बात करें तो इन्वेस्टमेंट के बारे में यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि वो है 18,000 का, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 18,000. ठीक है, इन्वेस्टमेंट में. उसके बाद आगे यहाँ पे स्टॉक में कौन सी अमाउंट दी गई है, तो स्टॉक में यहाँ पे 30,000 का दिया है स्टॉक है, तो वो भी हम लोग लिख देंगे. उसके बाद यहाँ पे डेटर्स कितने, उसके ऊपर 10% आप लोगों को बैड डेब्ट रिजर्व रखना है. ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बैड डेब्ट्स कितने हैं तो उसकी अमाउंट यहाँ पे आप लोगों को कौन सी लेनी है, तो ये जो 15,000 की है वो कंसिडर करनी है. ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 15,000 और उसमें से माइनस हम लोग 10% करेंगे, तो 15,000 माइनस 10%, तो यहाँ पे आप लोगों को अमाउंट मिलेगी 13,500, तो वो आप लोगों को इस तरह से लिखनी होगी 13,500. देन उसके बाद यहाँ पे मशीनरी कितनी दी गई है, तो मशीनरी 75,000 है, उसमें से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 15,000 का. ठीक है, यानी कि यहाँ पे 75,000 माइनस 15,000, तो आप लोगों को 60,000 का अमाउंट मिलेगा, वो हम लोग यहाँ पे मशीनरी में लिखेंगे. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कैश आप लोगों को दिया है, तो कैश की अमाउंट है 600, तो आप 6,000, तो आप लोगों को 6,000 लिखना है. ठीक है, यानी कि यहाँ पे जितनी भी असेट्स दी गई थी वो हम लोगों ने ले ली. और उसके बाद अगर यहाँ पे हम लोग टोटल करें तो 1,60,000 प्लस 18,000 प्लस 30,000 प्लस 13,500 प्लस 60,000 प्लस 6,000, तो यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा 2,87,500. ठीक है, ये आप लोगों को क्या मिला, टोटल असेट्स. अभी यहाँ पे हम लोगों ने जो गुडविल लिखा है वो लेना रह गया है. ठीक है, तो प्लस यहाँ पे हम लोग करेंगे 15,000, तो यानी कि यहाँ पे हम लोग को टोटल असेट्स कितना मिलेगा, तो 3,02,500. ठीक है, इस तरह से आप लोगों को मिल जाएगा टोटल असेट्स. उसके बाद इसमें से हम लोग माइनस करेंगे लाइबिलिटीज़. तो लाइबिलिटीज़ में आप लोगों को याद रखना है कि जो वर्कर्स कंपेंसेशन फंड होता है वो हम लोग लाइबिलिटीज़ में नहीं लेते, मगर उसके सामने कोई भी रुपीज़ का फॉर एग्जाम्पल क्लेम यहाँ पे किया है तो वो हम लोग यहाँ पे लाइबिलिटीज़ में लेंगे. ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे वर्कर्स कंपेंसेशन फंड दिया है 6,000 का, मगर इसके सामने क्लेम कितना है, तो 500 का ही क्लेम आप लोग को दिया है. ठीक है, तो यानी कि 500 का क्लेम है, तो यहाँ पे हम लोग कौन सी अमाउंट लिखेंगे, 500 की अमाउंट लिखेंगे. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे क्या आएगा, तो क्रेडिटर्स हम लोग इसमें से माइनस करेंगे. क्यों, क्योंकि डेप्रिसिएशन फंड तो ऑलरेडी हम लोगों ने ले लिया और बाकी यहाँ पे क्रेडिटर्स बचे. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिटर्स से 24,000 के, तो वो भी यहाँ पे लेस में हम लोग लिखेंगे 24,000. ठीक है, तो यहाँ पे 3,02,500 में से माइनस करेंगे 500 और माइनस 24,000, तो यहाँ पे आप लोगों को परचेस कंसिडरेशन फाइनल कितना मिलेगा, तो वो मिलेगा 2,78,000. ठीक है, ये आप लोगों को मिल गया. उसके बाद इसका अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करें तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2,78,000 और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से किया है, तो यहाँ पे आप लोगों को ये जो 12% का पब्लिक
डिपॉजिट्स है उसके सामने ऐसा बोला गया है कि जो यहाँ पे ऐसा दिया गया है कि पब्लिक डिपॉजिट जो है वो होल्डर ऑफ द फर्म इन सच एज मैनर दैट पब्लिक डिपॉजिट होल्डर ऑफ द फर्म डू नॉट સસ્ટેન એની ઇન્ટરેસ્ટ લોસ ઇન ફ્યુચર, એટલે કે તેનું ગુજરાતી અહીં આપેલું છે કે જે પેઢીના પબ્લિક ડિપોઝિટ હોल्डरને વ્યાજનું नुकसान न થાય તે રીતે यहाँ આગળ डिबेंचरों આપવાના છે। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 12% का जो पब्लिक डिपॉजिट है उसके बिहाफ में यहाँ पे उसने क्या किया है तो उतने यहाँ पे डिबेंचर्स दिए गए। ठीक है, तो इसका यहाँ पे हम लोगों को कितनी अमाउंट मिलेगी तो वो इस तरह से मिलेगी कि यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि उसको कोई भी लॉस ना हो। ठीक है, जो भी यहाँ पे पब्लिक डिपॉजिट होल्डर है उसको कोई भी लॉस ना हो, यानी कि यहाँ पे आप लोगों को पीएनएल अकाउंट में एसेट साइड दिया है 6000। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे 30,000 की जितनी भी अमाउंट है उसमें से हम लोग क्या करेंगे, ये जो 6000 है पीएनएल के वो हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है तो 30,000 माइनस 6000 करेंगे तो 24,000 मिलेगा। तो 24,000 का यहाँ पे क्या हो जाएगा डिबेंचर्स किसके बिहाफ में तो 12% पब्लिक डिपॉजिट के बिहाफ में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोग को इक्विटी दिया है, तो इक्विटी में ऐसा बोला गया है कि यहाँ पे 13,500 इक्विटी शेयर्स और उसके पैसे कितने हैं तो ₹10 ईच है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे प्राइस ऑफ ₹16 पर शेयर, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे तो आप लोगों को गुजराती में ऐसा दिया गया है कि સેલ્જા જે કંપનીના ₹10ના એક એવા 13,500 ઇક્વિટી શેર્સ ₹16ના ભાવે અને બાકીની જે રોકડ છે રોકડ સ્વરૂપે ચૂકવવી। ठीक है, એટલે કે અહીં यहाँ पे आप लोगों को ये ₹10 नहीं लेनी है, मगर कौन सा रुपीस कंसिडर करना है तो 16 पर शेयर आप लोगों को कंसिडर करना होगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 13,500 इंटू हम लोग करेंगे 16, तो यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा 2,16,000। ठीक है, तो वो आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा 2,16,000। देन उसके बाद जितनी भी यहाँ पे अमाउंट बचती है वो केस में हम लोग को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे 2,78,000 उसमें से हम लोग माइनस करेंगे 24,000 और माइनस करेंगे 2,16,000, तो आप लोगों को यहाँ पे 38,000 का कैश मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को ये अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। देन उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को जनरल एंट्रीज लिखने को बोला था। ठीक है, तो जनरल एंट्रीज में ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे तो जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ સેલ્જા लिमिटेड, એટલે કે સેલ્જા કંપનીના ચોપડામાં જરૂરી આમ નોંધ। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद आप लोगों को क्या करना है तो परचेस कंसिडरेशंस में जितनी भी असेट्स ली है वो आप लोगों को डेबिट करना है, और क्रेडिट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे तो फर्स्ट पहले हम लोग असेट्स ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट એટલે કે પાઘડી ખાતે ઉધાર, और यहाँ पे उसकी अमाउंट है 15,000 तो लिखेंगे 15,000। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग की अमाउंट है 1,60,000। उसके बाद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप लोगों को दिया है 18,000 का, और 30,000 का यहाँ पे स्टॉक दिया है। डेटर्स यहाँ पे आएगा 13,500, उसके बाद 60,000 की मशीनरी है, और लास्ट में यहाँ पे कैश है 6,000 का। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को जितनी भी असेट्स है वो आप लोगों को डेबिट करनी है। देन उसके बाद क्रेडिट आप लोगों को क्या करना है तो जितनी भी हम लोगों ने लाइबिलिटीज यहाँ पे ली है वो। ठीक है, तो 2 हम लोग करेंगे वर्कर्स कंपेंसेशन फंड अकाउंट, और अमाउंट आएगी 500 की। उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग 2 करेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट, और उसकी यहाँ पे अमाउंट कितनी आएगी तो वो आएगी 24,000। ठीक है, उसके बाद जितनी भी अमाउंट बाकी रहेगी वो हमारी परचेस कंसिडरेशन ही ऑलरेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 हम लोग लिखेंगे मेसर्स वर्धमान एंड वत्सल लिमिटेड। ठीक है, और यहाँ पे अमाउंट कितनी आएगी तो अमाउंट आएगी 2,78,000। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को एंट्री करनी है। उसके बाद यहाँ पे जितना हम लोगों ने क्रेडिट किया है परचेस कंसिडरेशंस उतना हम लोग डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा मेसर्स वर्धमान एंड वत्सल अकाउंट्स डेबिट 2 हम लोग क्या करेंगे तो इसके बिहाफ में हम लोगों को क्या दिया है तो फर्स्ट यहाँ पे आएगा डिबेंचर की अमाउंट है 24,000 की। उसके बाद 2 यहाँ पे आएगा इक्विटी शेयर्स की अमाउंट है 2,16,000। उसके बाद यहाँ पे कैश में हम लोगों ने कितना पे किया है तो कैश में यहाँ पे 38,000। ठीक है, इन सभी का अगर हम लोग टोटल करें यहाँ पे तो हम लोगों का ऑलरेडी आंसर आएगा 2,78,000। ठीक है, जो था हमारा परचेस कंसिडरेशंस। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोग को जनरल एंट्रीज लिखनी होगी। देन उसके बाद यहाँ पे आप लोग को ऐसा बोला गया है कि जितने भी यहाँ पे बाकी के शेयर है 7,500 उसका क्या किया है तो ₹10 के हिसाब से फॉर पब्लिक एट 20% प्रीमियम फॉर विच फुल अमाउंट वॉज रिसीव। ठीक है, यानी कि यहाँ पे पब्लिक में इश्यू किया है 7,500 का इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो यानी कि अगर हम लोग शेयर्स इश्यू करते तो हमारे पास
पैसे आते तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे એટલે કે बैंक खाते उधार। और यहाँ पे 2 हम लोग क्या करेंगे, 2 यहाँ पे करेंगे इक्विटी शेयर्स अकाउंट और 2 करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है, એટલે કે जामीनगिरी प्रीमियम खाते। और इक्विटी में हम लोग अमाउंट कितनी लिखेंगे तो 7,500 इंटू हम लोग 10 करेंगे, यानी कि 75,000 अमाउंट मिलेगी। देन उसके बाद यहाँ पे 7,500 इंटू यहाँ पे 20% प्रीमियम है, तो आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे ये जो ₹10 है उसके 20% यानी कि 2 आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट आएगी 15,000 की। और फाइनल यहाँ पे बैंक अकाउंट में कितनी अमाउंट आएगी, तो वो आएगी 90,000, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आप लोगों को जितनी भी जनरल एंट्रीज लिखने को जब भी बोले तो इस तरह से आप लोगों को एंट्री करनी होगी। उसके बाद यहाँ पे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के भी बारे में भी आप लोगों को बोला है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4th नंबर की एंट्री करेंगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट कर देंगे और 2 हम लोग करेंगे बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक या कैश अकाउंट कर देंगे। और यहाँ पे अमाउंट कितनी लेनी है, 1,200, ठीक है, इतनी आप लोग को अमाउंट लेनी है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे कि सेल्जना कंपनीज बैलेंस शीट एज एट डेट 1 એપ્રિલ 2024 એટલે કે સેલ્જા કંપનીનું તારીખ 1/4/2024 રોજનું પાકું સરવાયું। तो इस तरह से आप लोगों को बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी होगी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज और यहाँ पे उसमें भी 1 करके आएगा शेयर होल्डर्स फंड એટલે કે शेयर होल्डरना भंडोळो। उसमें एक क्या आता है, तो शेयर्स कैपिटल, ठीक है। इसमें आप लोगों को कितने शेयर्स लेने हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों को कितना दिया है, तो ऑथोराइज कैपिटल दिया है 25,000 इक्विटी शेयर्स का, मगर यहाँ पे कितना दिया है, परचेस कंसिडरेशन में 13,500 इक्विटी शेयर्स दिया है और यहाँ पे 7,500 जो था वो पब्लिक में इश्यू किया है, ठीक है। यानी कि इन दोनों का हम लोग टोटल करेंगे, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 13,500 प्लस हम लोग करेंगे 7,500, तो 21,000 के इक्विटी शेयर्स हो गए। और रुपीस यहाँ पे उससे कितने हैं, तो 10 रुपीस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो 21,000 इंटू 10 करेंगे, यानी कि 2,10,000 हो गए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस में हम लोग क्या क्या लेंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को वर्कर्स कंपेंसेशन फंड जो बोला है उसके सामने आप लोगों को जितना भी क्लेम हुआ है उतना ही लेना है, ठीक है। तो वर्कर्स कंपेंसेशन फंड में 500 का क्लेम हुआ था, तो यहाँ पे हम लोग उतनी ही अमाउंट लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो जितना भी हम लोगों को प्रीमियम मिला है उतना, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो 13,500 शेयर्स थे इक्विटी के उसका ₹10 था, मगर यहाँ पे कितने के सामने एक्सेप्ट किया, तो ₹16 पर शेयर लिया, ठीक है। यानी कि ऊपर का 6 रुपीज़ हुआ, तो 13,500 इंटू 6 करेंगे, यानी कि 81,000 का हमारा प्रीमियम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, प्रीमियम में लिखेंगे ब्रैकेट में 81,000 प्लस हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे जब भी 7,500 हम लोगों ने पब्लिक में इश्यू किए थे तो उसके सामने 20% प्रीमियम लिया था, यानी कि ₹2 हम लोगों ने लिया था प्रीमियम। तो 7,500 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पे 15,000 अमाउंट मिलेगी। तो प्लस हम लोग यहाँ पे 15,000 करेंगे, ठीक है, यानी कि 15,000 प्लस 81,000, तो टोटल यहाँ पे आप लोग को प्रीमियम कितना मिलेगा, 96,000। तो आप लोग को यहाँ पे प्रीमियम में लिखना होगा 96,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को शेयर वारंट में कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे आगे क्या लिखा है, तो शेयर्स एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, उसमें भी कुछ नहीं आएगा उसके सामने। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि नॉन करंट लायबिलिटीज એટલે કે बिन चालू देवा, उसमें यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। और फर्स्ट जो दिया है ना कि लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, उसमें क्या आएगा, तो डिबेंचर्स आएगा, ठीक है। जो हमारा 12% पब्लिक डिपॉजिट था 30,000 का, उसके सामने डिबेंचर्स दिया है, जितना भी हम लोग को लॉस ना हो उतना, ठीक है। तो यहाँ पे 24,000 हम लोगों ने डिबेंचर्स लिया था, तो यहाँ पे हम लोग 24,000 की अमाउंट इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। और आगे यहाँ पे 4th नंबर का आता है करंट लायबिलिटीज એટલે કે चालू देवा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, तो फर्स्ट आप लोग को दिया है कि शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, उसमें कुछ नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे ट्रेड पेबल्स दिया है એટલે કે व्यापारी देवा जो लेनदार हो छे ते, ठीक है। यहाँ पे जितने भी क्रेडिटर्स है उतने आप लोग को लेना है। तो यहाँ पे 24,000 के क्रेडिटर्स आप लोग को सब में दिए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन दोनों इन्फॉर्मेशन में कुछ भी नहीं दिया है। तो फाइनल हम लोग क्या करेंगे, तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ का टोटल करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट
2,10,000 प्लस हम लोग करेंगे 500 प्लस 96,000 प्लस हम लोग करेंगे 24,000 और प्लस यहाँ पे 24,000। तो यहाँ पे आप लोगों का अमाउंट कितना मिला 3,54,500। ठीक है, तो वो आप लोगों को इस तरह से लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग क्या करेंगे, सेकंड नंबर का बनाएंगे असेट्स का। ठीक है, એટલે કે મિલકતોનું तो फर्स्ट आएगा नॉन करंट असेट्स એટલે કે बिन चालू मिलकतों। तो उसमें यहाँ पे कौन कौन से आते हैं, तो ए करके आता है फिक्स असेट्स, उसमें ए करके आता है टेंजिबल असेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को टेंजिबल असेट्स में दो दिया है, एक लैंड एंड बिल्डिंग और दूसरा है मशीनरी। ठीक है, तो लैंड एंड बिल्डिंग की यहाँ पे हम लोगों ने अमाउंट निकाली थी, तो वो थी 1,60,000। तो यहाँ पे टेंजिबल में हम लोग लिखेंगे 1,60,000 लैंड की। ठीक है, उसके बाद सेकंड हम लोग लिखेंगे मशीनरी की, और मशीनरी की यहाँ पे उसमें से हम लोगों ने डेप्रिसिएशन माइनस किया था, तो अमाउंट हमारा 60,000 आया था। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे इंटेंजिबल असेट्स એટલે કે अदृश्य मिलकतों, तो उसमें यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, तो लेंगे गुडविल। ठीक है, એટલે કે પાઘડી લેવામાં આવશે, तो यहाँ पे हम लोग गुडविल तो लिखेंगे, मगर उसमें हम लोग क्या करेंगे, तो प्लस करेंगे जो भी हमारा डिसोल्यूशन एक्सपेंसिस हुआ है उतना। ठीक है, એટલે કે જે અહીંયા આગળ વિસર્જન ખર્ચ થયો છે તે પ્લસ કરશું गुडविलમાં। तो यहाँ पे हमारी गुडविल कितनी आई थी 15,000 आई थी, प्लस हम लोग करेंगे उसमें डिसोल्यूशन एक्सपेंसिस वो थे 1,200। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल हमारी गुडविल आएगी 16,200। उसके बाद यहाँ पे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, तो वो कुछ भी नहीं है। उसके बाद इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट, वो भी कुछ नहीं है। उसके बाद बी आता है यहाँ पे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट એટલે કે बिन चालू रोकाणों, उसमें हम लोग क्या करेंगे, तो जितने भी इन्वेस्टमेंट है वो हम लोग लेंगे। तो 18,000 के आप लोगों को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन में दिया था कि 18,000 का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, उसके बाद स्टॉक दिया है 30,000 का, तो यहाँ पे स्टॉक हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे दिया है डिफर्ड टैक्स असेट्स, उसमें कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस दिया है, वो उसमें भी कुछ नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे अदर नॉन करंट असेट्स दिया है, उसमें भी यहाँ पे हम लोग कुछ भी नहीं लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे सेकंड नंबर का हम लोग बनाएंगे करंट असेट्स का એટલે કે ચાલુ મિલકતો। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे जितने भी करंट इन्वेस्टमेंट है એટલે કે જેટલા પણ ચાલુ રોકાણો છે वो लेंगे। तो वो यहाँ पे हमारा करंट इन्वेस्टमेंट कितना है, तो वो कुछ भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे इन्वेंटरीज दिया है એટલે કે माल सामग्री आपेलू है, तो यहाँ पे स्टॉक आप लोगों को दिया था 30,000 का, तो वो आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा 30,000। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को ट्रेड रिसीवेबल दिया है એટલે કે व्यापारी लेना એટલે કે देवादारों, वो आप लोगों को उसमें माइनस किया था बैड डेट रिजर्व। ठीक है, तो उसका कितना अमाउंट आया था, तो 13,500 आया था अमाउंट। उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग क्या करेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट એટલે કે રોકડ અને રોકડ સ્વરૂપની મિલકતો, तो ये आप लोगों को डायरेक्ट जो बैलेंस शीट में पुरानी बैलेंस शीट में दी गई थी वो नहीं लेनी है, बल्कि इसका हम लोग कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, और आगे यहाँ पे दिया है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, उसमें हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। और यहाँ पे अदर करंट असेट्स दिया है, उसमें भी हम लोग कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पे फाइनल कैश का कैलकुलेशन करें तो क्या करेंगे, तो फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों को कैश बैलेंस कितनी दी गई 6,000, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 6,000। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसमें प्लस करेंगे 90,000 रुपीज़। ठीक है, किसके, तो यानी कि कैश के जब भी हम लोग फाइनल कैश की कैलकुलेशन करें तो आप लोग को जनरल एंट्रीज में आना होगा। ठीक है, जनरल एंट्रीज में हम लोगों ने 90,000 बैंक अकाउंट में डेबिट किए थे, यानी कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, 90,000 का, तो ये अमाउंट आएगी 96,000। उसके बाद यहाँ पे आगे क्या है, तो क्रेडिट, यहाँ पे कैश क्रेडिट है, तो वो कैश क्रेडिट दिया है 38,000 का। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे लास्ट में भी दिया है कि जितना भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस था वो भी यहाँ पे हम लोगों ने माइनस किया है, तो ये 1,200 उसमें भी हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, यानी कि माइनस 38,000 और उसके बाद माइनस हम लोग 1,200 करेंगे, तो यहाँ पे 96,000 और माइनस 38,000 माइनस 1,200, तो आप लोगों को यहाँ पे फाइनल कैश कितना मिलेगा 56,800। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा आपकी फाइनल अमाउंट। तो इसकी अमाउंट हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हम लोग लिख देंगे कि 56,800। ठीक है, इस तरह से आप लोग को
अमाउंट लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग फाइनल टोटल निकालेंगे कितना हो रहा है असेट साइड का, ठीक है। आप लोग को ये पता ही होगा कि जितना भी यहाँ पे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ का टोटल हुआ उतना ही हमारा असेट्स का टोटल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो 1,60,000 प्लस करेंगे 60,000 प्लस 16,200 प्लस करेंगे यहाँ पे 18,000। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को दिया है 13,000, ठीक है, प्लस करेंगे 30,000 प्लस 13,500 प्लस करेंगे 56,800। तो यहाँ पे आप लोगों को टोटल मिल जाएगा 3,54,500, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों टोटल सेम हो रहा है, ठीक है, जितना भी असेट्स का टोटल है उतना, और यहाँ पे इक्विटी और लाइबिलिटीज़ का टोटल दोनों सेम है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये जो बैलेंस शीट हम लोगों ने बनाई है वो सही है, यानी कि ये जो सम नंबर यहाँ पे इस तरह से आप लोगों को सम में जितना भी पूछा है इस तरह से आप लोगों को कैलकुलेशन करना होगा। और सबसे टफ यहाँ पे इस सम में है, यहाँ पे आप लोगों को बैलेंस शीट प्रिपेयर करना, ठीक है। वो आप लोगों को आना चाहिए कि किस तरह से हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 4 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।